नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, गुपकार अलायंस की पहली मीटिंग थी। आप चौंक जाएंगे, पहली मीटिंग नहीं, रिजल्ट आने के बाद पहली मीटिंग थी। और पहली मीटिंग में बड़ी गंभीरता से चर्चाएं की गई उन जिलों की जहां पर गुपकार अलायंस का वर्चस्व है, जहां पर तय है कि उनके ही चेयरमैन बनना है। वहां पे किस किस को बनाया जाएगा, वो भी एक चर्चा का विषय था। और दूसरी बड़ी चर्चा ये थी कि जिला श्रीनगर में जहां पे निर्दलीय उम्मीदवार ज़्यादा जीते हुए हैं, उस जिले पे कैसे कब्जा किया जाए, उस जिले पे कैसे अपना चेयरमैन बनाया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। दर्शकों, जैसे कि परिणाम आए हैं उसमें साफ और स्पष्ट हो गया है कि जम्मू संभाग के 6 ऐसे जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मर्जी से अपना चेयरमैन बना सकती है, लेकिन बाकी जिलों में जोड़ तोड़ की परिस्थितियां बनी हुई। ऐसा ही कश्मीर में भी बना हुआ है। लेकिन आज गुपकार अलायंस की मीटिंग बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुई, क्योंकि जब नए सिरे से चेयरमैन बनाए जाएंगे हो सकता है बीच में तकरार हो जाए, गतिरोध बन जाए, लेकिन आज का दिन उनके लिए बेहतर था क्योंकि जीत करके आए थे। जो उनका मोराल था वो भी बढ़ा हुआ था, मनोबल बढ़ा हुआ था, सियासी मनोबल बढ़ा हुआ था, और साथ ही साथ तालमेल का भी कोई अभाव नजर नहीं आ रहा था। बड़े तालमेल के साथ जब मीटिंग खत्म होती है तो स्पोक्स पर्सन जो है वो आकर के प्रेस को संबोधित करते हैं और अपने संबोधन में कहते हैं कि गुपकार अलायंस और यूनाइट हुआ है, यानी यूनिटी की वो एक और मर्तबा फिर तस्दीक करते हैं कि यूनिटी और बड़ी है। जब गुपकार अलायंस हुआ था उसमें और आज नतीजे आने के बाद बड़ी ज़्यादा यूनिटी बढ़ी है। Who voted, and even to those who did not vote for us. Gratitude to them who came out in very large numbers and reposed faith in democracy, strengthened democracy in the state, in JNK. Now that the people of Jammu and Kashmir, after so many upheavals, have reposed their faith in the democracy of this country, it is incumbent upon, and the onus lies on the administration to reciprocate that respect and faith in democracy. I would say that there are some disturbing reports coming about interference in democracy, in people's verdict, wherein the government of the day is acting in a partisan manner and in fact becoming a participant by directly, indirectly facilitating moves by some people to attract independence towards them by confining them. I think they should desist from this and not humiliate this great verdict of the people of Jammu and Kashmir. History is replete with examples that those who try to humiliate verdicts of people, they end up with a disaster. We need to respect this verdict and show respect to the people of JNK. Under no circumstances should democracy be tinkered with, interfered with. That is totally unacceptable. Election has ended. It has been one of the most peaceful elections in the last 3 decades. The most non-violent, peaceful election. And this should have ended up with something good. That it ends with preventive detentions is something which is totally antithetical to the way the elections have been held in terms of peaceful, in terms of peace, in terms of lack of violence. तो दर्शकों, आपने देखा स्पोक्स पर्सन सज्जाद गनी लोन ने किस तरीके से बड़े छाती ठोक के कहा कि अलायंस मजबूत है, गुपकार अलायंस और यूनाइट हुआ। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन ने एक मरतबा फिर कहा कि जिन लोगों को बिना वजह हाउस अरेस्ट किया गया, नज़रबंद किया गया, उनको रिहा किया जाना चाहिए। हम इलेक्टेड लोग सरकार से ये अपील कर दें। Well, as traditionally in the last 3 decades, we have seen so much of violence. One fails to understand that when you have elections conducted so peacefully, why do you need to detain people? As they have detained in the past, we condemn these detentions with all the power that we have. And we just hope that after such a great performance of democracy, we are not faced with these arbitrary detentions. And they should be released immediately. And they should be released immediately. This is our demand.
We are today here with the mandate of the people, a majority mandate, a decisive mandate, and we say that they should be released. KGD will work together hereafter, sir, as well? Absolutely. Absolutely. Why do you have doubts about it? Absolutely. You try to create doubts? No, sir, no. Then It is as strong, much stronger today than it was when it was formed. so don't put any such things. We are united and we'll continue to be united Inshallah. for what this People's Declaration stands for. A pleasant stay in this tragedy of the season that is coming, which is we are in it. Chile Kalan. I hope to God that there will be electricity and there will be water for the people who have suffered for ages for the lack of this. And we hope the government will look into that urgently. Also, we will request the government that 4G should be restored immediately. It's unfortunate that the people of this state, our children, are suffering Students. because students are suffering because they have to be now online, everything. Our business people are suffering. I requested the governor the other day when I was in that inauguration of the hospital. I said the 4G should be restored, whereas the Prime Minister is talking of 5G. We don't even have 4G. We think this should be restored as quickly as possible. And those people who are held up in thanas for no rhyme or reason must be released immediately if you want democracy to survive. दर्शकों, फोन लाइन पर हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सनम एजाज। सनम, आज अलायंस की पहली मीटिंग थी, यानी परिणाम आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ये पहली मीटिंग थी। मीटिंग का लब्बो लबाब क्या था, क्या आपको लगा उसमें? देखिए विनोद जी, इस वक्त कश्मीर में जो इलेक्शन खत्म हुए हैं, गुप्कार अलायंस ने जनता से जो वोट लिया है, ना विकास के नाम पे लिया है, ना किसी और मुद्दे, बल्कि 370 और 35A के रेस्टोरेशन को लेकर इनको वोट पड़ा है। तो ये पहली मीटिंग थी, क्योंकि कल से ही बातें होना शुरू हो गई थी कि क्या अब गुप्कार अलायंस जो है वो 370 और 35A की रेस्टोरेशन के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएगी। और कल जहाँ कुछ पोलिटिकल पार्टी लीडरान ने भी इस पे अपने बयान दिए थे, वहीं आम जनता भी इसी पे बात कर रही थी, सोशल मीडिया पे भी इस पे बहस हो रही थी। तो आज की ये मीटिंग सिर्फ इसी चीज को लेके थी कि श्रीनगर में जो गुप्कार अलायंस की मीटिंग, इसमें आगे की रणनीति या स्ट्रेटजी अपने यहाँ बनाई जाए कि किस तरह से नई दिल्ली पे एक प्रेशर माउंट किया जाए ताकि वो 35 और रेस्टोरेशन के हवाले से कोई बात है। अगर गुप्कार अलायंस ये भी कहती है कि 370 और 35 से कोई ये जो है ऑनरेबल कोर्ट में, और उमर अब्दुल्ला ने कल ही इस पे बताया था कि उन्हें ऑनरेबल कोर्ट से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन फिर भी प्रेशर बनाए जाने के लिए रणनीति किस तरह की रहती है वो गुप्कार अलायंस उसकी स्ट्रेटजी बना रही है। क्या ये डिफरेंसेस नहीं हो जाएंगे जब चेयरमैन बनाने की बात आएगी? तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जिनका गुप्कार अलायंस बना हुआ है, क्या इनमें गतिरोध बन जाएगा उनका? देखिए विनोद जी, इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये सारी, इनका वजूद ही 35 और 370 के आसपास ही है। इसके अलावा इनकी उतनी बड़ी कोई सियासत इस वक्त नहीं है, चाहे वो चुनाव इसलिए चुनाव हो या इस वक्त जो चुनावी भाषण थे, सब में 35 और 370 के रेस्टोरेशन की ही बात की जा रही थी। तो इनके बीच में अगर मतभेद बहुत हैं और मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही मंच पे इसीलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं अवाम में इनका जो एतमाद है उसको बहाल किया जा सके। तो उसके लिए इन्हें अपने कुछ जो है जो मामला थे वो एक तरफ रखे, एक तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जनता का इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हर तरफ से माउंट हो रहा है, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग्स हो, वहाँ पे भी इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी गुप्कार अलायंस के जितने भी लीडर हैं हर किसी को इसी 370 और 35 के आसपास ही रखने और घेरने की कोशिश की जा रही है। सनम, अगर हम श्रीनगर जिले की बात करें, वहाँ इंडिपेंडेंट लोग ज़्यादा जीत के आए हैं, तो उस जिले को लेकर के गुप्कार अलायंस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए गुप्कार अलायंस का श्रीनगर में स्ट्रेटजी का हम देखें तो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट जो है उनका भी टिल्ट जो है, ट्विस्ट है, वो गुप्कार अलायंस की या 370 और 35 के आसपास ही है। माना वो गुप्कार अलायंस के डायरेक्टली साथ नहीं है, लेकिन जो कश्मीर में इस वक्त जो सेंटिमेंटल सियासत बनी है उसमें 370-35 से सरफरेस्ट है। और फिर अभी कल ही कुछ क्वार्टर से खबरें आई हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जल्दी असम्बली के चुनाव कराने होंगे। तो उसके लिए इतने भी कल जो नए लीडर तैयार हुए हैं, ये असम्बली इंतखाबात की तैयारियां करी
है। तो इस वक्त जो भी लीडर है कश्मीर का, खासतौर पर मैं कश्मीर की बात करूंगा, तो कश्मीर में जो भी लीडर बन के आए या आगे के जो चुनाव लड़ने का सोच रहा है, असम्बली चुनाव लड़ने का सोच रहा है, तो वो 35 से 370 से बाहर थोड़ा कम ही जाएगा। तो श्रीनगर में ये बड़ा फायदे की बात हो गुपकार अलायंस के लिए कि जो भी यहाँ पे निर्दलीय है, आजाद मुल्क है, जीत के आया है, तो कहीं न कहीं गुपकार अलायंस के आसपास ही घूमेगा, चाहे वो किस तरह की सियासत करे, लेकिन 370-35 के आसपास घूमते हुए गुपकार अलायंस के साथ ही रहेगा। सनम, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज इनका जो मनोबल वो बड़ा हुआ है, मोराल बड़ा बूस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई राजनीतिक ऑक्सीजन मिल गया हो। क्या वजह ये रिजल्ट के कारण हुआ है? देखिए, गुपकार अलायंस के लिए इससे बड़ी उम्मीद थी। जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने सेंटिमेंटल सियासत की थी, उससे लगता था कि गुपकार अलायंस को 140 में से 140 कश्मीर घाटी से मिलनी चाहिए थी कोई, लेकिन फिर वही हो गया कि वन वे गेम होने के बजाय गुपकार अलायंस ने खुद एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ा। वो अलग बात है कि जो भी जीता, चाहे वो निर्दलीय जीता, इन्हीं के लोग लगभग कहीं न कहीं जीते हुए। बहुत कम ऐसे लोग हैं निर्दलीय आजाद उम्मीदवार जो इनकी विचारधारा से हटके हों, लेकिन ओवरऑल जो भी जीता है कश्मीर से वो इन्हीं की विचारधारा के आसपास होकर जीता है। कोई पीडीपी वाला जीता है, कोई एनसी वाला जीता है, तो ये इससे बड़ी इनके लिए कामयाबी, वो भी बिना किसी मेहनत के मिलना, ये इनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि कोई बड़ी मेहनत नहीं हुई है। कोई स्टार कैंपेनर इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीडीपी का बाहर नहीं निकला। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन की जो लीडरशिप है उन्होंने ही सारा कुछ किया। तो बिना मेहनत के, बिना किसी चीज के इतना कुछ मिलना, इससे बड़ी इनके लिए कोई और उपलब्धि या कामयाबी नहीं हो सकती है। तो इससे गुपकार अलायंस को बहुत ज्यादा इनका मनोबल बहुत स्ट्रांग हुआ है। और आगे की अब इनका ये भी मानना है गुपकार अलायंस का कि अब टर्मल डिक्टेट करनी, क्योंकि उनके साथ अवाम है। तो जब टर्मल डिक्टेट करने की बात आती हो तो तब आ ही जाता है कि मनोबल ऊपर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, रहबरे खेल स्कीम के तहत नियुक्त जो अध्यापक हैं वो सरकार की नीतियों से नाराज हैं। आज कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ और जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुआ। जम्मू में रहबरे खेल टीचर्स ने बीजेपी के मुख्यालय के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और उनका ये कहना है कि SRO 202 के साथ इस पर भी चर्चा होनी थी रहबरे खेल पर, लेकिन SRO 202 में संशोधन कर दिया गया, लेकिन रहबरे खेल के लोगों को खुले में छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया भी है, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी वो सड़कों पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल, उपराज्यपाल से टाइम लिया जाए और उपराज्यपाल से मुलाकात करवाई जाए। आइए देखते हैं जम्मू में क्या कहा। सर, आज हम रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जम्मू डिवीज़न के हर एक टीचर यहाँ पे आया हुआ है और वो बीजेपी से यही सवाल पूछता है कि हम लोगों ने आपको वोट्स भी किए हैं, आप बोलते हैं कि 70 साल के गुनाह हैं जो पीछे पार्टीज ने किए हुए हैं, लेकिन हमें तो आप लोगों ने 2017 में अपॉइंट किया था। हमारी पॉलिसी देख के आप देखिए सर, कल भी कविंदर गुप्ता सर बोल रहे थे ये हमने इनको अपॉइंट नहीं किया हुआ, लेकिन सर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी 2017 में जो पॉलिसी आई थी और 18 में इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और 19 में सर हमने ज्वाइन किया हुआ, गवर्नर रूल में हमने ज्वाइन किया हुआ इसका। आज हम इनसे यही पूछने आए हैं सर कि ये सारे टीचर्स हम यही पूछने आए हैं कि सर हमें हक कब मिलेगा? जो रहबरे खेल फिजिकल टीचर्स हैं इनके साथ जस्टिस कब होगा? हम लोग 3000 रुपया पर मंथ ले रहे हैं, इन्होंने आज 1.5 साल से इनके पीछे भाग रहे हैं। हम रोज आश्वासन देते हैं, हमें कभी लेटर बना के दे देते हैं, ये लेटर दो वहाँ पे, ये लेटर दो वहाँ पे। तो हम सर आज यही जानना चाहते हैं रविंद्र राणा सर से, PMO सर से, आप बीजेपी की इतनी बड़ी जीत भी हुई है यहाँ पे, तो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारे साथ जस्टिस कब होगा? हम यही चीज़ की डिमांड, आज हम यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक जब तक रविंद्र राणा सर आके हमें मीडिया के सामने नहीं बताते हैं कि हमारे साथ जस्टिस कब करेंगे और हमें LG सर के पास कब लेके जाएंगे। डिमांड क्या आपकी? डिमांड हमारी ये है सर कि हम ये चाहते हैं रहबरे खेल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जो हमारा 7 साल का प्रोविजन पीरियड है उसको कम करके 2 साल का किया जाए और हमें एटलीस्ट बेसिक सैलरी दी जाए, ताकि जो हमारी फैमिलीज हैं वो भी, उनको भी अच्छे से हम सर्वाइव कर पाएं। दर्शकों, इसी तर्ज पर कश्मीर में भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। कश्मीर में भी लोगों ने कहा
कि कहीं ना कहीं उनके साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, पक्षपाती एटीट्यूड लेकर के उनके साथ सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बार बार आग्रह करने के बावजूद, बार बार गुजारिश करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक जी दम पे SRO 202 और इनकी फाइल एक साथ चर्चा में लाई गई थी, लेकिन SRO 202 को संशोधित कर दिया गया, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिला। ये देखते कश्मीर में क्या कर। यूनाइटेड फ्रंट जस्टिस इक्वल पे खेल एम्प्लॉइज को रहबरे खेल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, असल में मसला यह है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई किया है, MPhil है, PhD है। सरकार ने एक स्कीम बनाई थी रहबरे खेल, उसके तहत इनको यहाँ पे लगाया गया था महकमे में बाज़ाब्ता ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। उसके बाद में इनकी तनख्वाहें 3000 रुपये मुकर्रर की गई थी, और जब रेगुलराइजेशन का वक्त आया तो सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को कहा गया कि SRO 202 और रहबरे खेल के मुतल्लिक अपनी सिफारिशात दे दे। उस कमेटी के सरबराही चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स। उसके बाद में उस कमेटी ने तो 202 के मुतल्लिक अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन रहबरी खेल का मामला अभी भी इल्तवा में पड़ा है। इनकी रेगुलराइजेशन का मसला है। 3000 पे एक PhD स्कॉलर, एक MPhil स्कॉलर 3000 रुपये में नौकरी कर रहा है। ये सरकार के लिए लम्हे फिक्रिया है। सरकार को सोचना चाहिए, जहां वो लंबे दावा करते हैं कि हम बेरोज़गारी हटाना चाहते हैं, पढ़े लिखे नौजवानों को हम रोज़गार देना चाहते हैं, तो अगर इनको उस वक्त रोज़गार दिया गया तो क्या वजह है कि इतने साल गुजरने के बावजूद अभी भी इनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, जबकि ये इसी टीचर का काम कर रहे हैं जो टीचर 50,000 रुपया सैलरी लेता है। अगर सरकार ने रहबरी टीचर का मसला हल किया है, SSA का मसला हल किया है, तो बाकी लोगों का मसला हल किया है, तो क्या वजह है कि जो रहबरी खेल के मुलाजमीन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, इनका मुस्तकबिल दाव पे है। इस चीज़ को अभी तक सरकार इल्तवा में रखे हुए है। दर्ज को वेतन नहीं मिलने के कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ये सफाई कर्मचारी जिला कठुआ में है, मेडिकल कॉलेज जिला कठुआ में लगे हुए हैं, और इन कर्मचारियों का कहना है कि कोविड-19 के दौरान हमने बड़ी मेहनत की है, लेकिन अब 1 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रही। आइए देखते क्या कहना है। समस्या है कि साढ़े जेह्ड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दे बंदे सफाई कर्मचारी, साड़ियां भैनां, साढ़े भरा, इन्हें की लगातार 10 तो 11 महीने होइए सैलरी नहीं दी गई। जिन्ने बारी सुपरडेंट मैडम को जाते, चाहे प्रिंसीपल को जाते, हर बारी इन्हें की लारा दिता जाता कि कोई नहीं दे देने सैलरी, कोई नहीं दे देने सैलरी। इन्हें की अज तक कोई 1 रुपया नहीं मिला 10-11 महीने तो। लगातार इहो गल करते कि कम करो, कम करो, कम करांदे। इन्नी महामारी हुई कोरोना के अनुसार भी साढ़े लोगों ने कभी इन्हें की जवाब नहीं दिता कि असीं कोरोना च कम नहीं करना, और कोई ऐसा बेनीफिट भी नहीं मिला कि जिहदे कन्नै इन्हें की ये लगे कि असीं अपने आप च श्योर है। इंश्योर इंदा कोई इंश्योर नहीं किया, कुछ नहीं, बिना इंश्योर देंदे को काम कराया गया। फिर भी साढ़े लोकें आख्या नहीं, साड़ा काम है इंदे लोकें दी सपोर्ट करना, मदद करना। सफाई कर्मचारी पूरे तन मन कन्नै सफाई की, और बाद च इन्हें की ये दस्या गया कि सैलरी नहीं। अज इन्हें मजबूर होइए एकड़ा कदम उठाया कि अही सफाई कर्मचारी बिल्कुल सफाई नहीं कर रहे, तो जिन्ने भी है इनकी इको डिमांड है सैलरी मिलग तो कम करना। क्रिसमस डे एक त्यौहार है, एक कितना वधिया त्यौहार है, पूरे वर्ल्ड च मनाया जाया करदा, और साढ़े लोग देखो सफाई कर्मचारी जेह्ड़े क्रिश्चन लोग है वो इत्थे बैठे दे है, तो कितनी माड़ी गल है कि 10-10, 11-11 महीने होइए इनदे को 1 रुपया नहीं है, दूर दराज तो आंदे, किराया खर्ची है कोई इब्बी नहीं है कि। मेरा नाम नेहा। साड़ी ये समस्या है कि सानू 5-6 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिलण दी, कईयां दी 10-10 महीने हो गए सानू सैलरी नहीं मिलण दी। असीं इन्हां कोल जाने अपनी समस्या लैके कि सानू सैलरी दिओ, ये अग्गों सानू टाल दिंदे ने, अज दांगे कल दांगे, अज दांगे कल दांगे, करने कोशिश करने बस इन्हां दी कोशिश ही हुंदी रहिंदी है, साडा कोई मसला नहीं करदे, समस्या हल नहीं करदे। फिर असीं अज अक के असीं बैठे हाँ धरने ते, असीं काम बंद किया, सवेर दा कोई काम नहीं किया। असीं कहा भी असीं काम नहीं करांगे जिन्ने तक साडी समस्या हल नहीं होएगी, काम नहीं करांगे, बंद करांगे, ठीक है। फिर प्रिंसीपल मैडम आंदी, उन्होंने भी यही कहने हैं कि साडा सोचो। वो कहती मुझे नहीं मिली सैलरी तो आपको कहाँ से मिलेगी, मुझे नहीं सैलरी मिली तो आपको कहाँ से मिलेगी। बस यही सुनाते रही, अपनी समस्या सुना, साड़ी सुनती है। वो जिन्नी बारी आंदी रोंद करती है, रोंद करके चल जाती, असीं मगर उन्हें अगे अगे होंगी, वो किसी की सुनती नहीं।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। अपना हक ही मंगन दे देना, मेहनत की कमाई है तो कोई और तो नहीं मंगन दे देना कोई। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सेहत स्कीम की। ये सेहत स्कीम प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर को लागू की जाएगी। यानी यूटी जम्मू कश्मीर के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी और ये बहुत ही अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने भी इसका रिव्यू किया कि ये स्कीम कहां तक पहुंच रही है और 26 को क्या तैयारियां। इसके अलावा डीसी पुंछ ने भी इसके मौका मुआयना लिया है। क्या कहना है डीसी का, ये देखते हैं। सेहत स्कीम अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च की जा रही है 26 दिसंबर को और इस स्कीम के तहत जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बाशिंदे हैं सभी को 5 लाख तक की इन पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का तक अगर किसी का भी इन पेशेंट मेडिकल कॉस्ट आती है तो उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। और ये पहले आयुष्मान भारत के तहत हमारे जितने भी सेट डेटा में जितने भी कवर्ड लोग थे उनके लिए ये स्कीम थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इसको जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के बाशिंदे हैं सभी को इसके लिए एक्सटेंड किया है। सभी लोगों को 5 लाख का मेडिकल कवर दिया जाएगा और इसका लॉन्च 26 दिसंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रिव्यू मीटिंग की गई और जिसके अरेंजमेंट्स देखने के लिए एडीसी साहब, सीएमओ साहब और जो, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हमारा प्रोग्राम होगा, इसी तरीके से हमारे जो मेडिकल ब्लॉक्स हैं तो ब्लॉक लेवल पर भी हमारे 3 प्रोग्राम होंगे, जिसमें हमारे ब्लॉक मंडी, ब्लॉक सूरनकोट और ब्लॉक मेंढर में भी ये प्रोग्राम कराए जाएंगे, जिसके तहत हमारे जो न्यूली जो बेनिफिशरीज हैं जो सेहत स्कीम के तहत उनको कुछ बेनिफिशरीज को कार्ड्स भी दिए जाएंगे और फॉर्मल लॉन्च इस प्रोग्राम का 26 दिसंबर को होगा। मैं सभी पुंछवासियों से ये अपील करता हूं कि वो बड़े नंबर में इस स्कीम्स में एनरोल करके इसका फायदा उठाएं और कहीं पे भी अगर उनको कोई भी जरूरत पड़ती है 5 लाख तक का इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए तो उसकी कॉस्ट अगर वो एम्पेलेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट बियर। दर्शकों, सेहत स्कीम को लेकर के हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का ये कहना है कि पहले चुनिंदा लोगों को इसका लाभ मिलता था, अब इंटायर यूटी के प्रत्येक व्यक्ति इसको इसके कवर में आ गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया एक नायाब तोहफा है जो जाते जाते साल में 2020 के जाते जाते आखिरी महीने में दिया जा रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के सभी वासियों के लिए जो है गोल्डन कार्ड ये जो हेल्थ फैसिलिटी जो दी है, तो इसमें बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव जो है बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया है और मोदी जी खुद इसको इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर से पूरी आवाम की तरफ से उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कहूँगा कि इस तरह से अगर JNK में वो करते रहेंगे कोई ना कोई मतलब आगे 370 धारा 370 हटने के बाद नई नई चीज़ें लाते रहेंगे तो इससे लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। आयुष्मान भारत को जौन सा इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को गोल्डन कार्ड में ला रहे हैं। पहले तो यही था जो 2011 की लिस्ट में थे उन्हीं को ये आयुष्मान भारत के कार्ड बनाते हैं। अब सभी जम्मू वासियों को ये जो से आयुष्मान भारत के कार्ड मिल जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को एक तजुर्बा दे रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हर फैसिलिटी जो सेंटर की है मिल सके। हम इसमें प्रधानमंत्री का बहुत ही आभार करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी एक अच्छी सोच रख रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को उस फैसिलिटी से जोड़ रहे हैं जो पूरे भारत में चल रही है और जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बनने जा रही है। उनका यह भी कहना है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने में इसका बड़ा रोल रहेगा और जो गरीब गुरबा लोग हैं अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। मेडिकल स्कीम जो है ये तो काफ़ी देर पहले 2-3 साल पहले इन्होंने स्टार्ट की थी और उसमें कोई 10% लोगों के जो मेडिकल बने थे तो उसमें 90% जो लोग रह गए थे। तो आज जो नई स्कीम आ रही है और इन्होंने ऐड किया है जो 90% से लेकर पूरा मतलब 100% जो ये मतलब कि करने वाले हैं उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोगों की मुश्किल आते हैं, जो भी लोगों को ज़रूरतें हैं, मेरे ख्याल में वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि फैसले सुना दिए या कोई मतलब इलेक्शन टाइम ये ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। अगर मोदी जी ने किया है तो हम मोदी जी को
ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को जो बहुत ही मुसीबतों में है, उससे पहले जो कोरोना चला था उसमें भी लोग बहुत परेशान हुए। जो हेल्थ कार्ड जो अभी इन्होंने शुरू किए हैं, बोल रहे हैं ऐसे, उसके बाद पूरा जो सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो ये सबको मिलना चाहिए। कोई भी इंसान, कोई औरत, बंदा, बच्चे ये नहीं रहने चाहिए। जो भी फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट को, इसके लिए कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट या उसके बरक्स ये चीज़ देनी चाहिए। मोदी जी जब से आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। अभी उनका जो लेटेस्ट उन्होंने कहा कि 26 तारीख से सभी के लिए गोल्डन कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, ये एक बड़ी अच्छी खबर है पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है भारत का मेन अंग गिना जाता है। इसीलिए इस गोल्डन कार्ड से लोगों को बड़ा ही फायदा होगा। आज हर एक इंसान की, पहले लोगों का क्या था, सेंसस में जिनका नाम आया था उनको 5-5 लाख रुपए की इंश्योरेंस दी गई थी, मगर अब इस गोल्डन कार्ड से हर एक आदमी को फायदा होगा। जो कोई भी सेंसस में आया है उसको भी फायदा होगा, और जो नहीं आज पहले जिनका कार्ड नहीं बन पाया उन सबको भी इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आज हर एक इंसान की 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस हो जाएगी, जो कि बड़ा एक अच्छी खबर है। और ये मोदी जी ने बड़ी अच्छा एक स्टेप उठाया है, और ये पूरा स्टेप जो है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दर्शकों, आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस को लेकर के पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और गिरजाघरों को सजाया गया है, बाजार में रौनक है और किस तरीके से लोगों में उत्साह, आइए बताते हैं। जो रेजिडेंसी रोड पर स्थित है, वहाँ के जो कांग्रेगेशन है, लोग हैं, क्योंकि क्रिसमस किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं होता है, ये लोगों का त्यौहार है और हम सब लोग मिलकर क्रिसमस इस सेलिब्रेशन को, त्यौहार को मना रहे हैं और तैयारियां चल रही हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।